تم نے جس اونچائی پہ شبیر کا سر رکھ دیا تو رب نے اس اونچائی پہ خورشید محشر رکھ دیا. تم نے جس اونچائی پہ شبیر کا سر رکھ دیا رب نے اس اونچائی پہ خورشید محشر رکھ دیا. اور اس علی کے لال کو مجبور کہنا ظلم ہے. باب خیبر جس نے انگلی پر نچا کر رکھ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ذکر شہدائے کربلا، ذکر امام حسین. بابا آتا ہو دوبارہ مقرر ہو. تم نے جس اونچائی پہ شبیر کا سر رکھ دیا رب نے اس اونچائی پہ خورشید محشر رکھ دیا. اور اس علی کے لال کو مجبور کہنا ظلم ہے. باب خیبر جس نے انگلی پر نچا کر رکھ دیا اس علی کے لال کو مجبور کہنا ظلم ہے. باب خیبر جس نے انگلی پر نچا کر رکھ دیا. کہتے ہیں لوگ رو رو کر حسین کربلا میں پانی کے لیے ترس گئے, پانی کے ایک قطرے کے لیے مجبور تھے. ہم کہتے ہیں سنو, جس کا حسین مجبور ہو مجبور مانے. ہمارا حسین کل بھی طاقتور تھا, آج بھی طاقتور ہے اور قیامت تک طاقتور رہے گا. حسین کل بھی پاورفل تھا, آج بھی اور قیامت تک. اب سنیں, ایک عاشق نے کہا تھا مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی. اردو سمجھتے ہیں آپ؟ خالص اردو میں سنیں. مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی, تیر سے تیغ سے خنجر سے نکلتا پانی. مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی, تیر سے تیغ سے خنجر سے نکلتا پانی. اور امتحان صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پر, امتحان صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پر, ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. امتحان صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پر, ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. اظہر فاروقی بریلوی نے کہا تھا یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں. یہاں پہ باریکی دیکھیں شعر کی, صحیح مفتی صاحب قبلہ, یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں اور جب بازو کٹ گیا تو پرچم کیسے اٹھے گا. تب اظہر فاروقی نے کہا تھا یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں. یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں. یہ کربلا ہے, یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے. یا یوں کہو یہ کربلا ہے وہ سرزمین مکہ, یہ کربلا ہے وہ سرزمین مکہ, وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ ہوشیار. ذکر شہدائے کربلا, فیضان سادات اکرام. واہ 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 واہ. دل لگ رہا ہے آپ کا؟ لگ رہا ہے تو پیار سے بولو لبیک یا حسین. اب حسینی رنگ میں بولو لبیک یا حسین. آپ بھی تھوڑا سیٹ ہو جائیے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت, بغیر کسی تمہید کے آپ کے قریب ہو رہا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کے ذکر کی باقیدہ محفل میں آنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں, حسنین رضا منظری بریلوی آپ کے قریب ہو رہا ہے.
सरकार पैगंबर आदम ने इरशाद फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा। अब दूसरे मकाम पर मदीने वाले नबी ने कहा था, अना दारुल हिकमत व अलीजुल बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अब ये कौन अली है, हिस्ट्री का जायजा लीजिए। हजरत अल्लामा सैयद दावतुस्सुगरा बिलग्रामी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया, अली की विलादत मुबारका से पहले आपके वालिद अबू तालिब यमन के सफर पर गए थे और जब यमन के सफर पर गए माले तिजारत को बेच दिया। साथियों ने कहा था, ए अली ए अबू तालिब ऐसा कीजिए, यही पे आसमानी किताब का आलिम रहता है, नाम उसका हिस्ट्री में मुशरम है, उससे मुलाकात कर ली जाए। अब शरफ मुलाकात हासिल हो रहा है। अबू तालिब भी चले गए हैं, आमना सामना उस आलिम से हुआ। हिस्ट्री में लिखा गया 300 साल उम्र बताई जाती है। जब सामने वाले को देखता है अपने हाथों से पलकें उठाता है, तब कहीं सामने वाले को देखता है। अब इतना सुनना ही था, अबू तालिब चले गए हैं, सलाम किया है, जवाब मिला। उसने कहा था, बता बेटे कहां से आए हो? अर्ज किया था, मैं मक्के का रहने वाला हूँ। मक्के में किस कबीले से ताल्लुक है? कहा कबीले कुरैश बनु हाशिम से है। कहा ये तो बताओ, आखिर तुम जब उस कबीले से ताल्लुक रखते हो तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम अबू तालिब है? हाँ हाँ। तुम्हारे दादा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहा मेरे बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तो कहा सुन ले, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ लिया है, जिसको मैंने ज़ुबूर में पढ़ा, जिसको मैंने इंजील में पढ़ा, जिसको मैंने तौरात में पढ़ा। ऐसा है अबू तालिब, अगर मैं सच बोलूं तब तुझे हाँ में जवाब देना है, अगर बात गलत हो लो ना में जवाब देना। अबू तालिब ने कहा ठीक है। अब कहने लगा वो आसमानी किताब का आलिम मुशरफ, ऐसा है जवाब बता। मेरे इल्म ये कह रहा है, ये बता तेरा कोई चचा भी तेरा कोई भाई था? हाँ 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 था। तो कहा क्या उसका नाम अब्दुल्ला भी है? हाँ हाँ उसका नाम अब्दुल्ला। कहा क्या उसके यहाँ किसी बच्चे ने जन्म लिया था? हाँ हाँ उसने जन्म लिया था। कहा क्या उसका नाम मोहम्मद है? हाँ हाँ उसका नाम मोहम्मद है। अब उस आसमानी किताब के आलिम ने कहा, ये बता अबू तालिब, क्या ऐसा तो नहीं जब वो माँ के शिकम में था तेरे भाई का साया उसके सर से उठ गया? जब 6 साल का हुआ तो उसकी माँ का साया उठ गया, जब 8 साल का हुआ तो दादा का साया उठ गया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कहा आप किस पोजीशन में है? कहा आप जवानी के आलम में है। तो अबू तालिब ने कहा था, अबू तालिब से उस आसमानी किताब के आलिम ने कहा था सुन ले। कहा क्या अबू कहा था, ए अबू तालिब सुन ले, मेरा इल्म ये कहता है जो तेरे भाई का बेटा मोहम्मद है वो तमाम नबियों का सरदार होगा। और सुन ले अबू तालिब, अब जो तेरे घर बेटा पैदा हो उस बेटे का नाम अली रखना। अली जो तेरा भतीजा मोहम्मद होगा वो तमाम नबियों का सरदार होगा, और तेरा बेटा जो अली होगा, अली वो तमाम वलियों का सरदार होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र शुहदाए करबला। वाह 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 वाह। अभी अली पैदा नहीं हुए हैं। अबू तालिब सफर से वापस आए हैं, दरवाजे पे दस्तक दिया, और जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दिया हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद दरवाजे पे आ गई। दरवाजे पे जैसे ही आना था, अब मुस्कुरा के बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, सलाम किया और सलाम का जवाब दिया गया। उसके बाद कहा सरताज मैं उम्मीद से हूँ, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। अब मुफ्ती साहिब क़िबला तवज्जो की जरूरत है। अब मैं आपसे कहूँ, मुस्तफा जाने रहमत अलैहि तहियत व सना के दादा अब्दुल मुत्तलिब के विसाल के बाद अबू तालिब ने मुस्तफा की किफालत की जिम्मेदारी ली है। सफर में जाते हैं तो नबी को साथ रखा, तिजारत के लिए गए तो नबी को साथ रखा, अपने दस्तरखान पे है तो नबी को साथ रखा। और एक दिन तो मौला अली के एक दिन तो अबू तालिब कहने लगे, बच्चे ज्यादा थे, जिस दिन दस्तरखान पे मोहम्मद नहीं होता तो
کھانا کم پڑ جاتا ہے، اور جب دسترخوان پہ محمد ہوتے ہیں تو کھانا بابرکت ہو جاتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ باقی رہ جاتا ہے، سب کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہوں لوگوں، اب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں ہے، جو جس کی پرورش کرے گا اس کا گھر میں آنا جانا ہوگا۔ اب جیسے ہی آنا جانا رہا، آج سے پہلے بھی فاطمہ بنت اسد کی کنڈیشن الگ، لیکن جب امید سے ہوئی ہے فاطمہ بنت اسد تب پوزیشن بدل گئی۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت گھر میں انٹر ہوتے اور فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوتی اور مصطفیٰ کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، جب یہ انداز بار بار دیکھا، ابو طالب نے کہا بتانا فاطمہ بنت اسد، کل بھی محمد کا آنا جانا تھا، آج بھی محمد کا آنا جانا ہے، کل بھی محمد آتا تھا، آج بھی محمد آتا ہے، لیکن انداز جو پہلے تھا وہ بدل گیا ہے۔ اب تو بیٹھی ہوتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی چچی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا او سرتاج سنو، میری مجبوری ہے، میرے پیٹ میں جو آپ کی امانت پل رہی ہے، میں بیٹھی ہوتی ہوں، سامنے والضحیٰ والے چہرے والا نبی آتا ہے، مذاق والی مذاق کی آنکھوں والا نبی آتا ہے، علم نشرح کے سینے والا نبی آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ کی رفتار والا نبی آتا ہے۔ اتنا سننا تھا تو کہاں بتا کیا کہنا چاہیتی ہے، تو کہاں میں کہنا یہ چاہیتی ہوں، جب یہ سامنے آتے ہیں اور میں پیٹ میں نیچے بیٹھی ہوتی ہوں اور جیسے ہی ان کا چہرہ میرے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اچانک میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ نیچے کی طرف جھٹکا مارتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے محمد کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کہا جب یہ سونا تھا تو فاطمہ بنت اسد کے اس سوال پر ذہن میں تشویش پیدا ہو گئی، سوچنے لگے ہو سکتا ہے عورت ہے جھوٹ بول رہی ہو، امتحان لیا جائے، آزمائش کی جائے، آزمایا جائے، آخر صداقت کتنی ہے، آخر جملے میں سچائی کتنی ہے۔ اب ایک دن ایسا ہوا، سامنے سے نبی آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہے، اور جب آمنا سامنا ہو رہا ہے، ابو طالب آگے بڑھے، دونوں کاندھوں کو دبوچ لیا، اپنی طاقت ابو طالب لگا رہے ہیں، اٹھنے کے لیے فاطمہ بنت اسد لگا رہی ہے، لیکن اتنے میں قریب آ گئے نبی۔ اب ان کی طاقت الگ، عورت کی طاقت اٹھنے کے لیے، مرد کی طاقت دبانے کے لیے۔ ہسٹری میں لکھا کہ جیسے ہی حضرت پیغمبر آدم سامنے آئے ہیں تو اچانک فاطمہ بنت اسد نے ایک جھٹکا مارا، ابو طالب دور جا کر کے رکے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں یہی سے اندازہ لگاؤ، جو علی ماں کے پیٹ میں رہ کر اتنی طاقت کا مالک ہو، وہ علی پیدا ہو کر باب خیبر انگلی پہ نہ نچائے گا تو کیا کرے گا؟ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ علی ہے علی۔ اب جب علی پل گئے، بڑھ گئے، بڑے ہو گئے، 8 سال کی عمر میں ہوئے تھے تو مصطفیٰ نے پوچھ لیا اے علی یہ تو بتا، جب تو پیدا ہوا تو نے آنکھیں نہیں کھولی، جب گود میری ملی آنکھیں کھول دی، عرض کیا آقا یہی تو معاملہ ہے، مجھ علی کی تمنا تھی آنکھیں کھولے تو دنیا دار کا چہرہ نہیں احمد مختار کا چہرہ ہو۔ حضرات اب یہی علی ہے، ذہن حاضر رکھیے گا، یہی علی ہے، یہ بھی مصطفیٰ کے گھر پل بڑھ رہے ہیں، اور حضور کے گھر حضور کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خاتون جنت خاتون قیامت فاطمہ زہرا پل بڑھ رہی ہے۔ ادھر یہ بھی جوانی کی طرف قدم رکھا ہے، ابو طالب کا بیٹا علی بھی جوان ہو رہا ہے۔ صحابہ کے مشورے پہ کھڑے ہو گئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھ کر کہا یہ بتا علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو طالب کے لخت جگر علی نے کہا آقا بولنا چاہتا ہوں زبان میں سکر تو ہمت نہیں ہے، بولتا رہا ہوں مگر آواز نہیں نکل رہی ہے۔ جب بہت تمام طاقتیں جمع کی ابو طالب کے لخت جگر علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے میں رشتہ مانگنے کے لیے حاضر ہوں۔ تب مصطفیٰ کریم نے کہا علی بیٹھ جا۔ علی بیٹھ گئے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں عاشق کو طلب جاؤ گے۔ اب علی سے کہا تھا میرے نبی نے اے علی
अली रिश्ता फातिमा का लेने आया है, रिश्ता फातिमा का मांग रहा है, बता अली तेरे पास है क्या? तो अली ने कहा आका, अली से पूछते हैं अली के पास क्या है? आका अली से ज्यादा अली के बारे में आका आप जानते हैं कि क्या है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कहा। अब मुस्तफा ने फरमाया अली बैठ जा। अंदर गए हैं नबी, इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा अली के साथ में तेरा निकाह जन्नत में हो गया, आसमानों पे हो गया है, अब तेरा निकाह जमीन पर मैं चाहता हूँ अली के साथ करो। अब ये निकाह अली के साथ में फातिमा का हो गया। अब कुछ दिनों के बाद जहन हाजिर रखिएगा, अब कुछ वक्त ही गुजरा था आपकी, फिर उसके बाद निकाह के कुछ दिनों के बाद रुखसती हुई है, और रुखसती जैसे ही सैयदा की हुई, अब साथ में उम्मे ऐमन भी नबी को, उम्मे ऐमन भी फातिमा को पहुंचाने, उम्मे ऐमन भी फातिमा को पहुंचाने के लिए गई। अब उसके बाद उसी घर में दिल लगने के लिए अब ये हजरत उम्मे ऐमन भी थी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत कितना प्यार करते हैं अपनी बेटी से। आका ने इरशाद फरमाया था फातिमा तो वज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज नबी ने जिगर का टुकड़ा अली को दे दिया है, आज मुस्तफा ने जिगर का टुकड़ा अली को दिया है। अब इसी जिगर के टुकड़े को अब मेडिकल साइंस की दुनिया में चलिएगा, जैसे ही 6 महीने निकाह के बाद में हुए हैं, हजरत इमाम हसन हजरत फातिमा के यहाँ पैदा हो गए। उनके 6 महीने के बाद फातिमी गुलशन में दूसरा फूल इमाम हुसैन की सूरत में जन्म ले लिया। अब मेडिकल साइंस की दुनिया में जाइएगा, आपको पता चलेगा 6 महीने का बच्चा, आप मुफ्ती साहिब किबला से पूछिएगा, जब 120 दिन का नुत्फा जब माँ के पेट में होता है, हमल 120 दिन का होता है, अल्लाह फरिश्ते से कहता है इसके रूह डाल दी जाए। अब ये रूह डाली गई, यानी 120 दिन के बाद रूह डाली जाती है। 4 महीने का जमाना हो गया, उसके बाद 5 महीने का वक्त लगा उस बच्चे को माँ के पेट में पलने बढ़ने के लिए। अगर 7 महीने का हो डॉक्टर कहेगा कमजोर है, 8 महीने का हो तब डॉक्टर कहेगा कमजोर है, मशीनों का सहारा लेना पड़ेगा, दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा। हमारा 8 महीने का बच्चा पैदा हो मशीनों में रख दिया जाए, 7.5 महीने का हो मशीनों में रख दिया जाए, लेकिन तारीख गवाह है हसन भी 6 महीने में पैदा हुए, हुसैन भी 6 महीने में पैदा हुए। अब हिस्ट्री ने कहा 6 महीने का बच्चा जिंदा नहीं रहता, 6 महीने का बच्चा सलामत नहीं रहता, 6 महीने का बच्चा सलामत नहीं रहता। तो मैंने कहा हमारा बच्चा 6 महीने का सलामत नहीं, फिर हसन कैसे जिंदा रह गए, हुसैन कैसे सलामत रहे? तो इश्क ने कहा यही तो फर्क है, तेरा बच्चा खून से पैदा है और हुसैन खून से नहीं, मुस्तफा के नूर से पैदा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शहदाए करबला, फैज़ाने सादात इकराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ दिल लग रहा है आपका? जिसका लग रहा है वो लहक के बोलो लब्बैक या हुसैन। अल्लाह आपको सलामत रखे, मरने से पहले बगदाद शरीफ होते हुए सबको मदीने शरीफ की बादम मकबूल हाजिरी अता फरमाए। हुसैन पैदा हुए, बचपन सुनाना मकसद नहीं है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया, अज़ान इक़ामत, चूमा, प्यार किया। बैठे थे हुसैन को लेके, प्यार कर रहे हैं शहजादों से। एक तरफ आपके बेटे इब्राहिम है, दूसरी तरफ हुजूर की बेटी के बेटे हुसैन है। अरे यार बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कलेजा निकालने के चक्कर में और तुम बिल्कुल खामोशी से काम ले रहे हो, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? आए हैं जिब्रील, आका आप दोनों से प्यार कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह दोनों की मोहब्बतों को जमा नहीं होने देगा। एक से निगाहे नबुव्वत देख रही है, अल्लाह ने मुझे खातमुन नबीयीन बनाया है,
नबुव्वत मुझ पर खत्म, अगर बेटे रहेंगे तो मुमकिन है बाप की कुर्सी के मालिक होने का दावा कर दें, जबकि नबुव्वत का सिलसिला बंद। पैगंबर ने चाहा मेरा दीन कौन बचाएगा। अब तसव्वुर जब हुजूर ने जान लिया, कहा ठीक है, मैंने अपने इब्राहीम को अपने बेटी के बेटे हुसैन पे कुर्बान कर दिया है। तीसरे दिन हुसैन के मामू इब्राहीम का विसाल हो गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, हजरत उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, बात समझ रहे हैं, हुजूर को देखा, आप अपनी चादर में कुछ छुपाए हैं, कुछ चीजें उठी हुई दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है किसी चीज को हुजूर ने अपनी चादर में छुपा लिया है। मैं अपने काम से फारिग हुआ और फरागत के बाद मैंने अर्ज किया था, फिदा का वाबी व उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, चादर में क्या है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुतालिक हजरत उसामा ने कहा, सरकार ने चादर को हटाया तो देखा उसमें हसन दिख रहे हैं, उसमें हुसैन दिख रहे हैं। आका ने फिर इरशाद फरमाया था, ये मेरी बेटी के बेटे, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। और अर्ज किया था, मालिक ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मौला तू उनसे भी प्यार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह गलत लुकमा दिया जिंदाबाद। इतना कहा था, अब यही बेटा हुसैन। अब हिस्ट्री का वो जायजा लो, तारीख के तेवर देखो। हजरत उमर फारूक आजम का बयान था, मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि तहियत वस्सना को देखा, एक कांधे पर हसन है, दूसरे पे हुसैन है। तो मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी कितनी अच्छी है। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ऐ उमर तुम ये तो देख रहे हो सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं देखते हो सवार कितना अच्छा है। अलबत्ता सवारी भी लाजवाब है और सवार भी लाजवाब है, ना इस सवारी का कोई जवाब है ना उस सवार का कोई जवाब है। ये मदीने की गलियां हैं, मुस्तफा सवारी बने हैं, आकाए कायनात के कांधे पर हुसैन सवार है। अब हिस्ट्री का जायजा लो, 60 हिजरी का जमाना आया है, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद जब यजीद तख्त पर बैठा है, वली तख्त पर बैठा है, आज से पहले वही मदीने की गलियां थी जिन मदीने की गलियों में नबी सवारी बने हैं और हुसैन मुस्तफा के दोशियत हर पर सवार है। अब आओ अपनी सिरसी का जायजा लो, आपकी बगल से रास्ता निकल रहा है, इस रास्ते पर मैंने एक जवान को देख लिया, मोटरसाइकिल पर बैठा है और तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाए चला जा रहा है। आप कहेंगे क्या है मौलाना, क्या कहना चाहते हो? तो मैं कहूंगा मोटरसाइकिल इसकी सवारी है और ये उसके ऊपर सवार हो गया है और हर सवारी अपने कमजोर का बोझ उठा के चला करती है। जब सवार कमजोर हो तब सवारी उसका बोझ उठाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ दूर आगे बढ़ा तो वही सवार था जो फर्राटे मार रहा था, अचानक गाड़ी पंचर हो गई और जब पंचर हुई तब देखा अभी कुछ देर पहले ये उसके ऊपर सवार था, अब ये हाथों से खींच कर लिए जा रहा है इसलिए कि पंचर हो गई। बोझ को उठाया जाता है, आज से पहले ये सवार था, जब ये सवार था और मोटरसाइकिल इसकी सवारी थी और अब ऐसा हुआ हिस्ट्री बदली है तो ये सवार नहीं, अब ये सवारी बन गया है। मोटरसाइकिल इसके ऊपर सवार तो जायजा ये लिया जाएगा, कभी सवार पर सवारी होती है, कभी सवारी पर सवार होता है। अब यही मदीने की पाकिज़ा गलियां हैं, मदीने की नूरानी गलियां हैं, मदीने की अजमत वाली गलियां हैं जिन गलियों में मुस्तफा चाले रहमत सवारी बने हैं, हुसैन तोशे नबी पर सवार है। और जब यजीद का खत वलीद तक पहुंचा था, वलीद ने बुलाया और कहा था हुसैन बैत कर लो। अब मैं कहता हूं ऐसे पहले नबी सवारी, हुसैन कांधे पे नबी के सवार। जब 60 हिजरी आई है तो हुसैन फिर सवारी बन गए हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत दीन सवार है, हुसैन सवारी बने हैं, हुसैन के
सवारी बने हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत काबा सवार, हुसैन सवारी बने हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत दीन सवार। तो मैंने तसव्वुर में अर्ज किया, ओ मेरे इमाम, आप गिरोगे काबे का तकद्दुस गिरेगा, आप गिरोगे इस्लाम की अजमत का किला गिरेगा, आप गिरोगे कुरान का कानून गिरेगा। तो मेरे इमाम की रूहानियत ने जवाब दिया था, और नाना के गुलाम मैं ना गिरूंगा। मैंने कहा किस लिए? कहा कि सुन ले, कोई माँ आज तक ऐसे बेटे को उसने जन्म नहीं दिया जो फातिमा के बेटे को गिरा दे। मैंने कहा इमाम क्यों नहीं? तो जवाब मिला, इसलिए कि जिसे मुस्तफा उठा ले दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं पाएगी। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, जिक्र इमाम हुसैन। वाह वाह वाह। हुसैन अब 60 हिजरी यजीद तख्त पर 20 के वाक़े सुनाना मकसद नहीं है, लेकिन अब जायज़ा लो क्यों मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि 4:30 बजे मेरी ट्रेन है। मुझे सुबह कल की रात में, यानी आज ही की रात में 12 बज गए, फिर मुझे बहराइच में कल बोलना है। तो मैं चाहता हूँ जितना मुमकिन होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुना कर रुखसत हो जाऊँगा। अल्लाह पाक मेरे पढ़ने को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमा ले। इमाम हैं, वलीद ने बुलाया अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हुसैन इब्न अली। कहा था उसने ख़त्मे कि इन तीनों से जितनी जल्दी हो बैत ले लो। बैत क्या कह रहा था? बैत। अरे समझते हो बैत किसे कहते हैं? बैत कहते हैं, बै का माना है अपने आप को किसी के हाथ बेच डालना, अपने आप को सौंप देना। क्या मांग रहा था? हाथ दे दो। अरे जल्दी बोलो यार, क्या मांग रहा था? हाथ। बादशाह, मैं कहता हूं सुन, यजीद कभी बादशाह नहीं था। बादशाह मांगता नहीं है, जो मांगता हो वो बादशाह नहीं, वो भिखारी होता है। मांगने वाला भिखारी होता है। मेरा हुसैन कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है और कयामत तक बादशाह रहेगा। और दूर मत जाओ, अजमेर वाले ख्वाजा से पूछ लो, मेरे मोइनुद्दीन ने कहा था शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरताप दसरताप नताप दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। बात कह रहा था हाथ दे दो। हुसैन ने कहा नहीं, हाथ नहीं दिया जाएगा। वलीद के दरबार में रात की तन्हाइयों में इमाम पहुंच गए, चंद के साथियों को लेकर कहा ऐसा है दरवाजे पे तुम बैठो, मैं अंदर जा रहा हूँ। अब वलीद से पूछना है, बातचीत करना है, अगर आवाजें बुलंद हो तो अंदर आ जाना, आवाजें बुलंद ना हो तो बाहर रहना। इतना सुनना था। इमाम अंदर गए, साथ में मरवान भी बैठा था। उसने सोचा मौका अच्छा है, आज तो भड़काने को मिल ही जाएगा। मैं कहता हूँ ये मरवान नहीं था, गिरगिट था। गिरगिट जैसा वक्त होता वैसे ही पासा पलट लेता, वैसे रंग बदलते रहता। अब ये कहने लगा वलीद मान जा, मौका अच्छा है, हुसैन आ गए हैं, इन्हें गिरफ्तार कर ले या इन्हें कत्ल कर दे, तू चाहेगा तो मनमानी मुरादें मिलेंगी। अब वलीद ने हुसैन को देखा, अपना तख्त छोड़ा था, मसनद से हटा, हुसैन को बिठाया और हुसैन के लिए वही यजीद का परवाना दिखाया। इमाम ने पढ़ा और कहा है ना, कहा कि सुन ले वलीद, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो ठीक है, मगर सुन ले ये यजीद है, मैं इसकी बैत नहीं करूंगा। कहा कि सुन ले, एक बेनमाजी की बैत हुसैन नहीं करेगा, फांसी की बैत हुसैन नहीं करेगा, एक अय्यार की बैत हुसैन नहीं करेगा, मक्कार की बैत हुसैन नहीं करेगा, जानी की बैत हुसैन नहीं करेगा। इसलिए कि वलीद जिसका पाक हाथ में गया हो उसका पाक हाथ कभी नापाक हाथ में नहीं जाएगा। अब यही तो मिशन है हुसैन का। हालात से समझौता करना जरूरी नहीं है। अगर मुस्तफा के दीन के मुखालिफ हवाएं चल रही हो तो
पीठ मत दिखाओ, बहादुर हो तो सीना लेकर हाजिर हो जाओ। हुसैन ने रुखसत पे अमल नहीं किया है, अजीमत पे किया है, वरना हुसैन अगर बैत कर लेते आपको सोना भी मिलता, चांदी भी मिलती, दौलत भी मिलती, आपकी निगरानी भी अच्छी होती, सारी चीजें मिलती। लेकिन हुसैन से मैंने तसव्वुर में कहा था मेरे इमाम मान जाओ ना, बैत कर लो, आपका अली अकबर बच जाएगा, आपका अली असगर बच जाएगा, आपका कासिम बचेगा, आपका औनो मोहम्मद बचेगा, आपके मुस्लिम के बच्चे बचेंगे, मुस्लिम बचेंगे, मुस्लिम इब्ने औसजा बचेंगे, अबू बकर बिन अली भी बचेंगे, उमर बिन अली भी बचेंगे, उस्मान बिन अली भी बचेंगे। आका हुसैन मान जाओ ना तो जवाब रूहानियत में मिलेगा। ओ मेरे गुलाम सुन ले, ये तो बच जाएंगे मगर नाना का दीन नहीं बचेगा। ये चाहते हैं तो चले जाए, मैं तो चाहता हूँ अगर सलामत रहे तो हम सलामत रहे या ना रहे, मगर मुस्तफा का दीन सलामत रहे। बेशक बेशक, नारे तकबीर।